record. Yeah, the teacher is saying the dam which you see, the water body which you see down there is Khadakwasla Dam, which serves water to areas in and around Pune. Now we will go to the Kalyan Darwaza gate. Come here and see this structure. This is called Devtek, sacred tank. Water coming from a natural spring gets stored here. Even today, it serves water all the year round to the people who stay at the fort. सो यहाँ पे देखो खड़कवासला डैम एज सीन फ्रॉम द सिंहगढ़ फोर्ट। यहाँ पे एक छोटा सा पिक्चर है 1.13, इतना कुछ उसमें विजिबल नहीं है बट ठीक है, यहाँ से यू कैन सी द खड़कवासला डैम। And what ma'am is saying that now let me, let us go to Kalyan Darwaza gate. Waha se, like this structure is called as Devtek, okay, sacred tank. मतलब क्या कि यहाँ से अभी भी पानी आता है and that is served as water for people who stay over there at the fort. Fine. All students expressing surprise. Oh my God, how can water be available continuously at this height since centuries? तो बच्चे लोगों को डाउट आया कि ऐसे कैसे मैम इतना हाइट पे कैसे वाटर अवेलेबल है। The teacher took them to a stall which served pitla bakri. Students observed that there were many similar stalls. Tourists were being served different food items there. After spending little time at Sihagat Fort, students came down the foothills and boarded the bus. The bus started towards Pune city where they had an overnight halt. In the city, they had evening snacks and tea and got ready to roam in the markets. तो उन लोग हाइट पे पहुंच गए, उन्होंने खड़कवासला डैम देखा, डेवटेक देखा एंड नाउ द टीचर वहां पे जो स्टॉल्स होते हैं ना, इट इज फॉर टूरिस्ट एंड वहां पे छोटे छोटे ऐसे स्टॉल्स होते हैं, तो वहां पे दे हैड पिटला बाकरी, अगेन इट इज अ मराठी डिश एंड स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट देयर वर सिमिलर स्टॉल्स जहाँ पे टूरिस्ट भी खाना खा रहे थे एंड देन आफ्टर दैट दे स्पेंड सम लिटिल टाइम एट दैट फोर्ट and then they came down towards the foothills, वापस नीचे आ गए फोर्ट से and they went towards the bus, उनका जो बस था वहां पे। the bus started towards Pune city जहाँ पे उनका second halt था। ठीक है, तो पहले उनका एक ब्रेकफास्ट हॉल था, फिर एक लंच हॉल था, फिर सिंहगढ़ फोर्ट पे आए एंड नाउ दे आर मूविंग टुवर्ड्स पुणे सिटी जो उनका ओवरनाइट जहाँ पे वो पूरी रात रहने वाले थे। In the city, they had evening snacks and tea and got ready to roam in the markets. ठीक है, तो पुणे सिटी पहुंच गए, वहां पे रात रहने वाले थे बट शाम के टाइम पे they had some snacks and they got ready to roam in the markets of Pune. यहाँ तक समझा है सबको? Yes, miss. Okay. Teacher, we will be visiting places in Pune like Shaniwar Wada and famous marketplaces like Tulsi Bagh and Mahatma Phule Mandai, which is market. There are wholesales and retail markets here. You can do shopping here. Make sure you write down all your observations. तो field visit है तो मैम भाई बोल रही है कि जो भी आप observe कर रहे हो कुछ अलग different, make sure you are writing down. And मैम भाई बोल रहे कि जो पुणे का शनिवार वाड़ा famous है वो हम लोग घूमने जाएंगे एंड और एक मार्केट प्लेस है तुलसी बाग एंड महात्मा फुले मंडाई मार्केट, तो इवन ये सारे प्लेसेस हम लोग घूमने जाएंगे। After the city tour, they had dinner and returned to the place of their night halt. फिर वहां पे सिटी टूर किया, मार्केट्स घूमे, डिनर किया एंड उनका जो नाइट हॉल्ट था वहां पे आ गए। So this was the day 1. Now we will see day 2, which is 7 a.m. After breakfast they proceed to Alibag. ठीक है, अभी पुणे से they were on the way to Alibag. Teacher, now we are on the Mumbai Pune Express Highway. Can you see the change in the relief again? वापस आप लोग को relief में change मिलेगा, तो what is that change? We will stop at Rajmachi Point near Lonavala. तो लोनावाला में एक famous point है राजमाची, वहां पे हम लोग halt लेंगे, मैम उनको बता रहे हैं। Yes, Tushar. Yes, madam. Even though we are driving on a plain road, we can see hilly regions all around. The frequency of houses is becoming less. तो मैम ने जैसे ही पूछा रिलीफ में क्या चेंजेस आ रहा है, तो तुषार ने बताया कि यस मैम, हम लोग प्लेन रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं बट आजू बाजू में हिल मैं देख सकता हूँ, लाइक आई कैन सी हिल
hilly regions across me, and the frequency of houses is also becoming less. के घर भी on the way बहुत कम कम दिखाई दे रहे हैं. सी देवटेक का यहाँ पे फोटो है. सो दिस इज द लैंड जिससे हम लोग ने देखा ना, इट सर्व्स एज अ वाटर बॉडी, लाइक यहाँ से लोगों को पानी का सोर्स मिलता है. सो दैट वाज द फोटो. या these are the teacher these are the yeah these are the slopes of the Western Ghats. We call these hilly areas Sahyadris too. कि वो वही बोल रही है मैम कि you are right, आप प्लेन रोड पे हो बट आजू बाजू में आप माउंटेन्स देख सकते हो. दैट इज वाई, बिकॉज हम अभी वेस्टर्न घाट्स पे है, एंड वेस्टर्न घाट्स को और एक नाम है विच इज सह्याद्री. सो यू कैन इवन कॉल इट सह्याद्रीज. From here you can observe the difference in slopes, the gentle slope to the east and the steep slope towards the west. तो मैम वही बोलते कि यहाँ पे अगर आप स्लोप्स देखोगे ना तो उसमें भी फर्क है कि जो ईस्ट में है वो जेंटल स्लोप्स है, एंड जो वेस्ट में है वो कैसे है, स्टीप है, डीप है वैसा. ठीक है, इतना क्लियर है बच्चा लोग? यस मिस. यस मिस. ओके, ये देखो यहाँ पे इवन फूड आइटम्स बताए हैं जो उन्होंने सिंहगढ़ में खाया. ओके, I can only see something in white. Fine. Towards the west, you can see many cliffs and waterfalls about which you have learnt in class 9. वो दही है. हाँ, मतलब वही दही खाया लगता है ये लोग ने. बटर मिल्क जो ऊपर बताया ना, छाछ वैसा. एंड ये कुछ छोटा सा कुछ अलग से होगा, स्वीट I guess. Yeah. Towards the west, you can see many cliffs and waterfalls about which you have learnt in class 9. This region is also the source of river Ulhas, a major west flowing river. ठीक है, तो मैम वही बोल रहे कि towards, like जब हम लोग आगे जाएंगे towards your west, you will see many cliffs and waterfalls. And ये क्या है? This region is also the source of river Ulhas, a major west flowing river. के यहाँ पे मतलब उल्हास रिवर है ना, उसका फ्लोइंग भी है, तो वो भी आप देख सकते हो. The students took photographs of these features. It started raining again and the journey resumed. ये देखो राजमाची, वाओ, ये एक ब्यूटीफुल फोटो ड्यूरिंग मॉनसून्स लिया गया है, बारिश के टाइम पे इतना ब्यूटीफुल होता है राजमाची. हम लोग ने देखा ना ऊपर यहाँ पे बताया मैम ने राजमाची. ये वाले पे नहीं जा चुका, ये वाले पे नहीं गया मैं. ओके, ब्यूटीफुल, इट्स नाइस. राजमाची फोर्ट ये है, मतलब राजमाची प्लेस वहां पे, एंड वाटरफॉल्स एज राजमाची किधर है? ये रहा. इट इज अ पॉइंट फेमस इन लोनावला. अच्छा, लोनावला. यहाँ पे लिखा देखो, मैंने हाईलाइट भी किया, ध्यान नहीं दे रहे हो आप. राजमाची पॉइंट नियर लोनावला. ठीक है, यहाँ पे देखो आगे क्या बताया. वाटरफॉल, एज टीचर सेड यू विल आल्सो सी वाटरफॉल्स टुवर्ड्स योर राइट, टुवर्ड्स द वेस्ट. ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, मैनी क्लिफ्स एंड वाटरफॉल्स, तो वो भी आप देख सकते हो. तो उसका भी एक फोटो यहाँ पे बताया गया. सी अ वाटरफॉल इन द सह्याद्रीज. वाओ. Next, Namdeo, looking at the map, madam, we are crossing the Ghat section and now we are going to Khopoli. तो वो एक बच्चा मैप पढ़ रहा है, वो बोल रहा है मैम क्या हम घाट को क्रॉस करके आगे खोपोली की तरफ जा रहे हैं? Correct, Namdeo. This is known as the Bhor और खंडाला घाट in the Western Ghats. तो अभी वो लोग on the way थे अलीबाग, तो अलीबाग के on the way उन्होंने क्या है, वो लोग खंडाला घाट है. आप लोग ने ये, अगर इफ यू गाइस ट्रैवल, आप लोग ने ये सारे नाम सुने होंगे. सो वी विल नाउ एंटर द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया एंड ऑब्जर्व द ट्री, सॉइल एंड हाउसेस दैट यू सी. तो मैम बोल रही है या वो जो आपने फोर्ट ये टर्न्स बोले, दैट इज खंडाला घाट, एंड नाउ यू शुड सी द ट्री, सॉइल एंड हाउसेस. उसमें क्या फर्क है वो मुझे बताना वैसा. सो शिव करके एक स्टूडेंट है, वो बोलता है मैडम वी कैन सी dense forest comprising of thick vegetation in the Ghats. We can see trees with broad leaves. We had seen such trees in the Sihagarh region too. Dense forest मतलब क्या, एकदम घना. घना बोलते हैं ना, घना is called dense, जहाँ पे ज्यादा trees होते हैं. It comprises of thick vegetation. Thick मतलब क्या, मतलब बहुत सारे vegetation. You will find number of plants over there. We have seen such trees in Sihagarh too. के वही बोलता है वो कि मैम यहाँ पे जो ट्रीज है उनके लीव्स ब्रॉड है, एंड ऐसे हम लोग ने सिंहगढ़ में भी देखे थे. टीचर, these are the
teak trees. Okay, तो उनका नाम क्या है? Teak trees है. This region is a region of deciduous trees. Okay, deciduous trees का ये पूरा region है, इसलिए you will find such trees over here. There are many Vanrais and Devrais. Okay, so Vanrais is woodlands and Devrais is sacred groves. After crossing the Ghats, the dense forest became sparse. के जो dense था, घना forest था, वो अभी sparse हो गया. Sparse मतलब क्या? एकदम कम हो गया वैसा. Paddy fields and huge industrial estates were now visible. Okay, now we can see paddy fields, rice fields around us, and now we can even see industrial area. मतलब क्या? Now they are coming towards urban side. Nazma, madam, I can feel a change in the weather. It is getting hotter and I have started perspiring. तो वो बोल रही है मैम अभी मुझे गर्म होने लगा और मुझे पसीना भी आने लगा. Teacher, you feel the change in the air. Because of increase in humidity in the air, we start perspiring and skin becomes sticky. As we go near the sea, this will increase. तो मैम, as I said earlier कि मैम जो जो बच्चों का डाउट है उसका टेक्निकल रीजन दे रहे हैं. तो मैम वही बोल रहे हैं कि अभी यहाँ पे क्या है, ह्यूमिडिटी एयर में बढ़ गया है एंड दैट इज व्हाई यू गाइस आर पर्सपायरिंग. और ये और बढ़ेगा व्हेन यू विल गो टुवर्ड्स सी साइड. ये देखो यहाँ पे देवराई जो हम लोग ने ऊपर देखा उसका फोटो है. नाम दियो, Madam, it has started raining in this region. Also, the amount of rainfall seems to be more. It might be happening because of this. तो नामदेव भी वही बोल रहा है कि मैम यहाँ पे बारिश भी ज्यादा आ रहा है. तो is this a reason? Teacher, Namdev, correct observation. Because of heavy rainfall and nearness to the sea, this happens. Also because of high rainfall, rice is the major crop here. तो मैम वही बोलते हैं कि आपका observation Yes. बरोबर है. या मतलब लोनावला में कभी भी बारिश होती है? नहीं नहीं, अभी दे आर ऑन द वे. तो वो लोग मे बी ड्यूरिंग मॉनसून्स गए होंगे, तो इसके लिए वैसा हो रहा है कि दे आर एक्सपीरियंसिंग रेनी सीजन. ठीक है, वो लोग कभी गए वो हम लोग को बताया नहीं ना, ये सिर्फ उनका ये है जो उनका ट्रिप है उसका बताया डिस्क्रिप्शन वैसा. सो नामदेव को मैम वही बोलते हैं कि यस आपका ऑब्जर्वेशन करेक्ट है एंड यहाँ पे सिंस हेवी रेनफॉल होता है यू विल फाइंड राइस ओवर हियर बिकॉज राइस को है ना बच्चा लोग ज्यादा पानी चाहिए ग्रो होने के लिए. तो जहाँ पे रेनफॉल ज्यादा होता है ना वहां पे आप राइस का प्रोडक्शन देखोगे. Soon we will reach the sea. Can you name the sea? तो टीचर वही पूछते कि अभी हम लोग सी के तरफ पहुंचेंगे तो कैन यू गाइस गिव अ आइडिया कि कौन सा सी रहेगा. ऑल स्टूडेंट्स टुगेदर द अरेबियन सी बिकॉज उनके पास मैप है ना, वो लोग मैप से पढ़ के बता रहे हैं. टीचर, good. After reaching Alibag, before we go to our lodges, we will visit the Talhati office. ठीक है, तो मैम उसको वही बोल रही है लॉजेस मतलब अ प्लेस वेयर यू गाइस आर गोना लिव. तो मैम वही बोलते कि अलीबाग जाने से पहले हम लोग को तलाटी के ऑफिस में जाना पड़ेगा. यू कैन गैदर इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन आर यू हैव प्रिपेयर्ड इन द स्कूल. एक मिनट है बच्चा लोग, बाय, पापा बुला के जाएंगे. Okay, so you can gather information on the basis of questionnaire. Questionnaire मतलब एक लिस्ट होता है जिसमें आपने क्वेश्चंस प्रिपेयर किए रहते हैं किसी को पूछने के लिए. So that is known as questionnaire. तो मैम वही बोल रही है कि आप लोग आपका इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चननायर प्रिपेयर करो जो आपको उधर तलाटी ऑफिस को पूछना है. उर्मी, we will be asking him questions about the types of crop, soil types, cultivation of fruits and other cash crops. We are asking him how land revenue is collected in his or her office, land under irrigation, water shield programs and other occupation in the villages. ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन प्रिपेयर किया रहता है कि वहाँ के टाइप्स ऑफ क्रॉप्स क्या है, वहाँ का सॉइल टाइप कैसा है, कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट कैसा है, कैश क्रॉप्स कैसे अवेलेबल है एंड ऑल सच क्वेश्चंस. इन सारे क्वेश्चंस पे उन्होंने टॉपिक प्रिपेयर करके रखे हैं. They reached Alibag in the afternoon and then visited the Talati office. They collected information based on their questionnaire. फिर जाके उन्होंने information भी collect कर लिया. Teacher, dear students, after lunch we will go to the sea coast. How many of you will be seeing the sea for the very first time? Almost all of them raised their hands. Abira, I'm just trying to imagine what a breathtaking view it would be to the sea.
what will it look like, or will there be just water? तो मैम वही पूछते कि कितने लोग आप लोग में से फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, एंड ऑलमोस्ट सारे ही बच्चे हाथ ऊपर करते कि सबका ही फर्स्ट टाइम होता है। एंड अबीरा करके एक बच्चा होता है, वो बोलता है कि मैम मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, आई डोंट नो कि व्यू कैसा होगा, सिर्फ पानी ही दिखेगा या आई फाइंड ट्रीज एंड एवरीथिंग। तो वो अपना एक्साइटमेंट बता रहा है। Teacher, true Abira, we will visit the beach now. We have already given clear instructions regarding precautions to be taken there. We will also visit a fort called कोलाबा और अलीबाग फोर्ट। ओके, तो वहां पे बीच पे घूमने के बाद हम लोग अलीबाग फोर्ट या जो कोलाबा फोर्ट है वो भी हम लोग विजिट करेंगे। We will have to take into account the timings of the high and low tides as this is away from the coast in the sea. Okay, तो वहां पे जाने से पहले हम लोग को लो टाइड्स और हाई टाइड्स का टाइमिंग भी देखना पड़ेगा, क्योंकि कभी हाई टाइड होता है ना तो दे नेवर अलाउ यू टू गो देयर, तो वो सब देख के फिर जाना पड़ेगा वैसा। We have studied the work of the sea waves in class 9. We will also identify some of the landforms formed by sea waves. Can you name some of them? तो मैम उनको वही पूछती है कि कोई कोई लैंड फॉर्म्स जो सी वेव्स फॉर्म करते हैं वो हम लोग ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, तो कैन यू गाइस नेम सम? ऑल चिल्ड्रन ऑलमोस्ट टुगेदर, बीच, सी केव्स, वेव कट प्लेटफॉर्म, सैंडबार एक्सेट्रा। टीचर, गुड, यू रिमेम्बर देम वेल। यहाँ पे इफ यू सी फिगर 1.2 दिया है कोलाबा फोर्ट का। They visited the beach and the fort. Some of them also enjoyed sitting on horse-driven chariots, and some of them enjoyed horse rides. ठीक है, तो वहाँ पे जो horse ride होता है तो बच्चे लोग ने वो भी enjoy किया। नेहा, Madam, this fort is different from the first two. Teacher, good Neha, can you tell the difference between them? तो नेहा को एक डाउट आता है कि दोनों फोर्ट में डिफरेंस है, तो मैम बोलते हैं यस यू कैन गिव मी द एक्सप्लेनेशन। तो नेहा बोलती है यस मैडम, दिस फोर्ट वाज कंस्ट्रक्टेड इन वाटर व्हाइल अदर टू वर ऑन लैंड। तो ये डिफरेंस था। टीचर, good, this fort is built on a wave cut platform. Because it is surrounded by sea water, it is called a sea fort. Simple. Earlier, these forts were built for the security of the sea. There are many such forts on the west coast. Okay, कि sea fort बहुत सारे हैं। Yeah, ma'am, I have heard few names like Sindhudurg, Janjira earlier, etc. तो वो और example देती है sea forts के। Teacher, based on the information you have collected, can you tell what occupations are followed here? Okay, तो वो मैम पूछती है कि आपको क्या लगता है यहाँ पे कौन कौन से ऑक्यूपेशन होते रहेंगे? राहुल, मैडम, फिशिंग एंड एग्रीकल्चर बोथ द ऑक्यूपेशंस आर फॉलोड हियर। ठीक है, कि फिशिंग तो होता है, सी है इसके लिए, एंड सिंस वहां पे प्लेन लैंड भी होगा तो इसके लिए वो लोग एग्रीकल्चर भी बोल रहे हैं। करेक्ट राहुल, टू विच कैटेगरी डू दिस ऑक्यूपेशन बिलोंग? हम लोग ने ऑक्यूपेशन आप लोग ने पढ़ा होगा राइट, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तो सब लोग ने एक साथ आंसर दिया दैट इट बिलोंग्स टू primary occupation. Teacher, true. Initially, fishing was the main occupation. Later on, agriculture was also practiced in this region, but away from the shore. कि सबसे पहले लोग यहाँ पे सिर्फ फिशिंग करते थे, ठीक है, फिशिंग was only occupation, but later on they started doing agriculture as well. Coconut, betel nut, jackfruit, banana, and some spices are cultivated in the coastal plains. This is known as हॉर्टिकल्चर फार्मिंग। ओके, तो बच्चा हॉर्टिकल्चर फार्मिंग किसको बोलते हैं अपन? हॉर्टिकल्चर फार्मिंग इज बेसिकली जहाँ पे आप प्लांट्स को उगाते हो टू प्रोड्यूस फ्रूट्स, व्हेन यू कल्टीवेट प्लांट्स इन सर्च ऑफ फूड। Today, tourism has become an important occupation here. Afterwards, students spend some time playing on the sands of the beach and captured beautiful glimpse of sunset in their camera. Beach पे थे बच्चे लोग enjoy कर रहे थे, horse ride enjoy किया, sunset का time था तो sunset enjoy किया, and after sunset they came to their lodges. Lodges मैंने पहले भी बताया जहाँ पे वो लोग रहने वाले होते हैं. The place where you are going to live is called lodges. They discuss important points to be compiled in their field visit report. अभी ये मेन होता है, when you go to field visit, उसके next day में आपको field visit report बनाना होता है, एक report writing लिखना होता है जिसमें आप पूरा आपका experience लिखते हो.
After returning to the lodge, they had dinner and rested for the night at Alibag. Next day in the morning, they had their breakfast and they left for their return journey. Clear? Chapter is finished. समझा बच्चे लोग? Any doubt? No, miss. No, miss. Okay. So what would be your homework? ये सारे जो discuss questions है आजू बाजू में यहाँ पे. If you were a part of this field visit, what preparation would you make? तो ये सारे आपको होमवर्क में लिखना है. तो स्टार्ट डिस्कसिंग. व्हाट वुड यू मेक? अगर आपको बोला हो कि आपको एक फील्ड विजिट का पार्ट बनना है, तो आपके अकॉर्डिंग आप क्या प्रिपरेशन करते? सबसे पहले तो क्या करोगे आप लोग? मिस जो इधर लिखा है वही करेंगे ना. हाँ, क्या? कलेक्ट इंफॉर्मेशन. हाँ, मैं लिख रही हूँ अभी, फिर वो पढ़ो. कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट प्लेस. बराबर है, जहाँ पे आप फील्ड विजिट के लिए जाने वाले हो, तो सबसे पहले क्या करोगे? वो प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे. फिर क्या करोगे? तो वो इंफॉर्मेशन आप किससे कर सकते हो? इट कैन बी थ्रू इंटरनेट और इट कैन बी थ्रू बुक्स. व्हाट एल्स? मैप्स. Yeah, you'll carry some essential with you. So that essentials can be maps. इसको मैं second point दे देती हूँ. Yeah, so that essential can be maps. It can be caps. आपका bags हो गया, आपका first aid kit हो गया. What else? You can take cap. गर्मी नहीं लगे इसके लिए. If you are going to monsoons, तो आप लोग का क्या बोलते हो उसको? मानसून्स में क्या पहनते हैं अपन? क्या बोलते हैं? रेनकोट. हाँ, रेनकोट ले सकते हो. बाइनोकुलर्स. या बाइनोकुलर्स. तो ये सारे एग्जांपल आप दे सकते हो कि सेकंड वुड बी कैरिंग एसेंशियल्स. उसमें आप ये सारा लिख सकते हो. ओके, मैं अभी यहाँ पे शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट आई एम मेकिंग श्योर दैट आई एम डिस्कसिंग. फिर थर्ड पॉइंट, व्हाट यू कैन राइट, यू विल listen to what teacher says. आप वो बता सकते हो. when teacher says something, हम लोग वो ध्यान देंगे. so you know, ये सारा चीज आप लिख सकते हो. listen to what teacher says. ये सारा point you can write. इसको आपको elaborate करना है, ठीक है? So this would be a homework. Next, suppose teacher ask you to plan the visit. How will you plan the trip? ठीक है, मैम ने आपको काम दे दिया, चलो आप लोग प्लान करो कहाँ पे जाना है. तो हाउ विल यू प्लान? पहले तो यू विल डिसाइड द प्लेस. बराबर ना? कहाँ पे जाना है, तो पहले आप सब लोग प्लेस डिसाइड करोगे. अभी प्लेस में क्या क्या आ जाएगा? तो वहाँ का लोकेशन, वहाँ का मैम रहने का भी बंदोबस्त, या ट्रांसपोर्टेशन. पहले तो रहने से पहले उधर पहुंचेंगे कैसे, तो ट्रांसपोर्टेशन देखोगे. फिर रहने के लिए बरोबर लॉजेस नहीं बोल सकते, रहने का क्या बोलते हैं पता है? फिर वहाँ का डिस्टेंस कितना है, आपको कितना पैसा लेके जाना पड़ेगा, कैपिटल. फिर आपका रहने के व्हाट डू यू कॉल, प्लेस टू लिव. ये सारा आपका फर्स्ट पॉइंट में आ जाएगा. बराबर, द डिसाइडिंग द प्लेस, इसमें ये सारा आ जाएगा. फिर व्हाट एल्स विल यू डिसाइड? पर्पस. हम लोग ने देखा ना, सबका एम होता है. यहाँ पे ये लोग ये सारे पॉइंट्स देखने वाले थे. रिलीफ, वाटर बॉडी, वेजिटेशन, एग्रीकल्चर. द सेकंड बिकम्स डिसाइडिंग द पर्पस, कि आप लोग क्यों जा रहे हो वहां पे. अरे ठीक है, सो दैट बिकम्स डिसाइडिंग द पर्पस. तो उसमें आपका एम आ जाएगा कि व्हाट एम, यू नो. यहाँ पे हम लोग ने देखा था कि एम क्या है, कौन से एम से आप जा रहे हो, वो सब. फिर लास्ट में हम लोग ने देखा, अगर कोई यू नो, आप और एक चीज लिख सकते हो. इफ यू नीड टू कलेक्ट सम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स,
कभी कभी क्या होता है, अगर आप कोई अब ये लोग तो फील्ड विजिट फोर्ट के लिए गए थे तो दैट्स फाइन, बट इफ यू आर गोइंग टू अ फैक्ट्री विजिट और वैसा कुछ, तो वहां से पहले आपको परमिशन लेनी पड़ती है। वो लोग परमिशन देते हैं कि या ये डेट को आप आ सकते हो। तो वो पूरा एक कलेक्टिंग डॉक्यूमेंट्स हो जाता है। फिर अगर आपको आपके साइड से कोई डॉक्यूमेंट लेके जाना है एज योर आईडी प्रूफ या वैसा कुछ, तो आप वो भी लिख सकते हो। परमिशन लेटर जैसे मैंने बोला था, कलेक्टिंग डॉक्यूमेंट में ही आ जाएगा परमिशन लेटर। व्हाट एल्स? और मिस और कौन कुछ? से पॉइंट्स पे जाने वाले हैं? हाँ बरोबर, तो ये बच्चा इसमें आ जाएगा लोकेशन में ही। मतलब लोकेशन जब आप डिसाइड करोगे ना कि ये मेरा फाइनल लोकेशन है, तो उसमें ही आपको लाइक बीच के हॉल्ट पॉइंट्स भी लिखने होते हैं, तो ये आप उसी में लिख दोगे। ठीक है। फिर या हम लोग ने देखा प्रिपेयरिंग क्वेश्चन आर भी होगा ना, क्योंकि आपको फिर क्वेश्चन आर प्रिपेयर करना पड़ता है। जहाँ पे आप, जिसको अभी समझो आप एक फैक्ट्री में जा रहे हो, तो उनको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने होते हैं, क्योंकि आप पिकनिक के लिए तो नहीं जा रहे हो ना, अपन फील्ड ट्रिप के लिए गए, तो वापस आपको क्वेश्चन आर प्रिपेयर करना पड़ता है। उनको लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं, तो वो भी आप पहले से ही प्रिपेयर करके जा सकते हो, बिकॉज यू नो वेयर यू आर गोइंग। तो ये सब आप इसको आपको ब्रीफ में लिखना है। ठीक है, आप व्हेन यू विल क्लिक ओवर हियर तो आपको पूरा ये मिल जाएगा। नेक्स्ट, what precautions will you take continuously during the field visit? तो क्या क्या precautions आप लोगे? पहले तो खुद का सेफ्टी और अपने साथ जो जो लोग आए हैं उनका सेफ्टी, बराबर। सेफ्टी ऑफ वन सेल्फ एंड अदर्स। फिर क्या? बी टुगेदर। और क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हो? तो मेक श्योर यू कैरी योर आइडेंटिटी कार्ड विथ यू। तो अगर किधर घूम गए या बाय चांस कुछ हो गया, तो आइडेंटिटी कार्ड पे कैसे पूरा इंफॉर्मेशन रहता है, तो दैट बिकम्स इजी। और क्या? एनीवन वाज सेइंग समथिंग? मिस बी टुगेदर। क्या हो गया था? बी टुगेदर। हाँ, बी टुगेदर, या इन अ डिसिप्लिन्ड वे, टू बिहेव इन अ डिसिप्लिन्ड वे। फिर ओबे द रूल्स, इसमें आप लिख सकते हो कि जो जो मैम ने रूल्स प्रिपेयर किया है उनको फॉलो करना। फिर इवन ट्राई नॉट टू हार्म द एनवायरमेंट। कभी कभी क्या होता है, अपन घूमने जाते हैं, कचरा फेंक देते, तो दैट शुड नॉट बी डन, सो नॉट टू हार्म द एनवायरमेंट। या समवन इज सेइंग समथिंग, बच्चा? Miss, we should also study the language spoken there. या परफेक्ट, ये गैदरिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट प्लेस। कभी कभी क्या होता है, कोई बोलते ही प्लेस पे जा रहे हैं तो मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, तो गैदरिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट प्लेस। तो अगर वो प्लेस कौन सी है, वहां पे लैंग्वेज कौन सा स्पोकन है, वो आप लोग देखोगे, तो दैट बिकम्स इजी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स को ही आपको इलैबोरेट करके लिखना है बच्चा। यहाँ पे मैं सिर्फ इन शॉर्ट लिख रही हूँ, पर आप लोग को इनको इलैबोरेट करके लिखना है। गैदर इन इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लेस, फाइन। कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट मड एंड वुड हाउसेस, द ढाब्याची घरे। तो ये भी आप थोड़ा गूगल करो और कहाँ कहाँ पे ऐसे मड हाउसेस है। ठीक है, सो ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस अगेन बिकम्स योर होमवर्क। ये वाला आपका होमवर्क हो जाएगा, ये वाला आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा जो जो बाजू में पॉइंट्स है ना, ऑल वुड बी योर होमवर्क। अभी हम लोग इस पे आते हैं, टेक्सचर। ठीक है, मैं पूरा नहीं समझा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ देवराय, तो हम लोग ने यहाँ पे देखा देवराय का कॉन्सेप्ट, तो बस वही एक्सप्लेन करना है। तो आई एम नॉट गोइंग थ्रू ऑल ऑफ द आंसर्स। ठीक है, अभी ये वाला देख लेते हैं। मेक अ रिपोर्ट ऑन योर फील्ड विजिट। जैसे मैंने बोला, फील्ड विजिट कर लिया, फिर नेक्स्ट डे आप लोगों को रिपोर्ट बनाना होता है। तो रिपोर्ट में आप क्या क्या इंक्लूड करोगे? तो सबसे अपना इंग्लिश जैसा ही होता है, तो वेरी फर्स्ट इज द सब्जेक्ट। कहाँ गए थे, रिपोर्ट मतलब सब्जेक्ट आ जाएगा कि क्यों, प्लेस एंड रीजन फॉर गोइंग देयर। ठीक है, फिर सेकेंड आ जाता है एम एंड ऑब्जेक्टिव, कि आपका एम क्या था जाने का, एंड विथ व्हाट ऑब्जेक्टिव यू वेंट देयर। तो सेकेंड आ जाता है एम एंड ऑब्जेक्टिव। ये पूरा एक पेज का बनेगा बच्चा, रिपोर्ट है तो छोटा आंसर मत लिखना, ये सबको आपको इलैबोरेट करना है।
So it should be like a full 1-page answer. Third would be information gathered. अभी वहां पे आपने जाके क्या क्या इंफॉर्मेशन गैदर किया, मीन तो उसके लिए अपन जाते हैं बराबर. तो इंफॉर्मेशन गैदर में फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा ए, मतलब ये सब पॉइंट हो गया. तो इंफॉर्मेशन गैदर्ड में फर्स्ट पॉइंट कौन सा आ जाएगा, किस चीज से बारे में इंफॉर्मेशन गैदर किया. तो यू कैन राइट अबाउट द लोकेशन ऑफ दैट प्लेस, के वो प्लेस के लोकेशन के बारे में हमने इंफॉर्मेशन गैदर किया. फिर और क्या हो सकता है, Miss mountains or hills. या लोकेशन कैसा, हाँ बच्चा वही लोकेशन में आ जाएगा वो, उसको आपको उसमें एलैबोरेट करना है. फिर एरिया, वहाँ का एरिया कैसा था, Miss ट्रांसपोर्टेशन vegetation. कैसा, वेजिटेशन, या परफेक्ट, वहाँ का वेजिटेशन कैसा था. Miss all types of trees. टाइप्स ऑफ Trees. ट्रीज, हाँ वही वेजिटेशन ना बच्चा, वेजिटेशन ही मैंने बोला ना, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स और ट्रीज तो वो वेजिटेशन में आ जाएगा. फिर वहाँ पे मेजर अट्रैक्शन क्या है, जैसे इसमें हम लोग ने देखा वो राजमाची था, फिर शनिवार वाड़ा था. तो वो जो प्लेस में आप जा रहे हो उसका मेजर अट्रैक्शन का क्या है, वहाँ का ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन सेटलमेंट्स कैसा है, उसके बारे में आप बता सकते हो. तो ये पूरा आपको इलैबोरेट करना है. वहां पे जाते वक्त कोई प्रॉब्लम आपने फेस किया क्या, वो सब आप लिख सकते हो. तो ये पूरा सेकंड पॉइंट जो हमारा है, थर्ड पॉइंट इंफॉर्मेशन गैदर, उसमें ये सारे प्रॉब्लम्स आप लिख सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट बन जाता है, ये तो हम लोग रिपोर्ट का लिख रहे हैं बराबर. तो ये सारा आप यहाँ पे बता सकते हो. समझा, इसको ब्रीफ में लिखना है. ठीक है, नेक्स्ट Miss प्रिपेयर आप अ ये ऐसा क्या क्वेश्चन. करने वाले हो? ये बच्चा मैं वीडियो भेजूंगी, तो वीडियो को आप रेफर करोगे ना, तो उसमें आप जो डिस्कस किया है वो आपको फिर लिखना होगा. वैसा ये जो अपना पूरा सेशन है रिकॉर्डेड है, तो मैं उसका वीडियो भेज दूंगी. तो अब ये जो अपन डिस्कस कर रहे हैं ना, उसी को आपको इलैबोरेट करके लिखना है. क्लियर. मैं पूरा नोट्स नहीं दूंगी बिकॉज नाउ यू गाइस आर इन 10th ना, तो खुद का नोट्स आप बना सकते हो, बट आई एम गिविंग यू अ आइडिया कि आपको कैसे लिखना है वैसा. ठीक है, क्लियर. Okay, miss. Yes, miss. ओके, ठीक है. नाउ Yes. सेकंड वन इज क्वेश्चनर फॉर अ फील्ड विजिट टू फैक्ट्री. आप फैक्ट्री को विजिट कर रहे हो, तो उनको आप क्या क्या क्वेश्चन पूछोगे. तो पहले तो आप पूछ सकते हो कि आपका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट क्या था, कि आपने फैक्ट्री आपकी कभी बनाई. फिर सेकंड यू कैन राइट, क्या क्या पूछोगे बोलो, कौन कौन से गुड्स आप मैन्युफैक्चर करते हो, तो आप वो लिख सकते हो. फिर क्या आता है, Ingredients. या उसके लिए आपका रॉ मटेरियल या आपका Miss इंग्रेडिएंट क्या machines कौन है. से use करते हैं? क्या, Which types of machines you use? yeah, you can write, you can ask them about machines, you can ask them about problem face, क्या आपका कोई problem face होता है क्या, वो भी आप उनको पूछ Miss, सकते we हो. can also ask them about international trade. Yeah, how do you carry out your international trade. फिर आप लोग जो ये गुड्स बनाते हो उसके लिए रॉ मटेरियल्स क्या लगता है. सो यू कैन आस्क अबाउट रॉ मटेरियल्स, वो रॉ मटेरियल्स आप कैसे प्रोड्यूस करते हो, आप वो पूछ सकते हो. फिर आप लोग के सेफ्टी के बारे में पूछ सकते हो कि सिंस इट इज अ फैक्ट्री, तो व्हाट आर द सेफ्टी मेजर्स टेकन, वो आप लिख सकते हो. देयर आर मेनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क. आपका ये जो है वो एनवायरमेंट को कैसे हार्म नहीं कर रहा है, तो एनवायरमेंटल सेफ्टी आप लिख सकते हो. सो ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस यू कैन आस्क. क्लियर. Yes, miss. या हाउ विल यू मैनेज द लिटर ड्यूरिंग द फील्ड विजिट. कि आप लोग से अगर कोई कचरा हो रहा है, 2 दिन के लिए जा रहे हो, तो खाना पीना लेके जा रहे हो, तो लिटर होना इट्स नॉर्मल, तो उसको आप मैनेज कैसे करोगे. तो वो आप बोल सकते हो दैट वी कैन कैरी आवर ओन कंटेनर्स, या वी कैन कैरी आवर ओन पॉलिथीन, जिसमें हम लोग डालेंगे, सो दैट हमारे से कोई कचरा नहीं हो रहा है. फिर वी कैन इन्फॉर्म एवरीवन अराउंड दैट नॉट टू लिटर. वहाँ के जो लोग हैं उनमें हम लोग अवेयरनेस ला सकते हैं. तो ऑल सच पॉइंट्स यू कैन राइट इन ब्रीफ. ठीक है. What items Yes, will you take with you
फॉर द फील्ड विजिट। आप अपने साथ क्या क्या आइटम्स लेके जाओगे, तो वही जैसे हम लोग ने ऊपर पहले देखा, यू कैन टेक योर बैग, कंपास, कैप, जो सारे हम लोग ने ऊपर देखे ना, वो सारा, वाटर बॉटल। फिर यू कैन इवन आस्क, ये एक पॉइंट आप लिख सकते हो, कंपास हो गया, कैप हो गया, बाइनोकुलर्स हो गए, वो सब तो नॉर्मल है। उसके साथ आप लोग कोई कंटेनर भी लिख सकते हो, जैसे कि वो समझो वहाँ के प्लांट्स हो गए या वहाँ का क्रॉप हो गया, उसका सैंपल लेने के लिए हम लोग ने कंटेनर लेके गए, सो दैट वी कैन कलेक्ट दैट सैंपल इन दोस कंटेनर्स। क्योंकि वहाँ पे कभी कभी ऐसे होता है, वहाँ का सॉइल अलग होता है या वहाँ के प्लांट्स अलग होते हैं, तो यू फील लाइक टेकिंग देम विथ यू, so for that you can take containers. And last, outline the importance of field visit, कि field visit का importance क्या है. So you can write that it helps us to understand various geographical concepts, right? जो हम लोग ने आज पढ़े, हम लोग ने कितने geographical conceptual words पढ़े, right? Undulating हो गया, rugged हो गया, pinnacles हो गया, तो ये सारे वर्ड्स हम लोग को कैसे पता चला, बिकॉज हम लोग ने ये चैप्टर पढ़ा, तो ये तो चैप्टर पढ़ने से पता चला। तो व्हेन यू प्रैक्टिकली गो एंड विजिट, तो आपको कितना सब पता चलेगा। सो यू कैन राइट दैट इट हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स, इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप्स बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट, फिर इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड स्टडी ऑफ ज्योग्राफी। बहुत कुछ आप लोग इसको ब्रीफ में लिख सकते हो। फाइन, क्लियर? Yes, Yes, miss. miss. ओके, चलो 15 मिनट थोड़ा मैंने एक्सटेंड कर लिया, बट ये सारे अपने आंसर डिस्कस हो गए। ठीक है सबको? फाइन, एनीवन एनी डाउट? No, miss. ठीक है, चलो, सो आई विल शेयर द लिंक ऑफ द वीडियो, बट तब तक ये जो डिस्कस वाला पार्ट है ये आप लोग खुद से कर सकते हो। तो काइंडली सबमिट योर होमवर्क बाय 9 o'clock, आज रात को 9 बजे तक कंप्लीट कर लो, इट्स फाइन, 9 को भेज देना। एनीवन